کراچی سے خیبر تک خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسلام آباد میں ڈینگی کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ وائرس کا شکار ہونے والی خاتون پمز اسپتال میں داخل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی ہدایت پر ضلع پاک پتن میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ہفتہ صفائی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ علی پور میں ریلی، پنڈی بھٹیا میں سیمینار کا انعقاد۔ اترپور میں سنگدل سسرالیوں نے داماد کو پیٹرول چھڑک کر جلا دیا۔ مقتول اسپتال میں زندگی کی بازی ہار گیا۔ جیکب آباد میں غیرت کے نام پر 2 خواتین کو قتل کرنے والے ملزم نے گرفتاری پیش کر دی۔ دادو میں بس ٹرمینل شہر سے باہر منتقل کرنے پر شہری اور ٹرانسپورٹرز کا احتجاجی مظاہرہ۔ اور خیبر پختونخوا میں پشاور میں ٹرانسپورٹرز کا شیڈول سے زائد فیس کی وصولی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اب کچھ خبریں صوبہ پنجاب سے۔ جاپانی سرمایہ کاروں کا وفد پاکستان کے برآمدی شہر سیالکوٹ کا جلد دورہ کرے گا۔ یہ اعلان پاکستان میں جاپان کے سفارت خانہ میں ہیڈ آف اکنامک اینڈ ڈیولپمنٹ سیکشن مسٹر نواکی کاموشیرا نے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں برآمد کنندگان اور صنعت کاروں کے ایک اجلاس سے خطاب کے دوران کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جاپان پاکستان سے تجارت کو ہر سطح پر فروغ دے گا۔ اس مقصد کے لیے جاپان سے بزنس مینوں اور سرمایہ کاروں کا وفد پاکستان کے صنعتی اور برآمدی شہروں کا دورہ کرنے کے لیے پاکستان آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ جاپان پاکستانی بزنس مینوں کو مستقل بنیادوں پر ویزے بھی جاری کرے گا، جبکہ سپورٹس، آلات جراحی، لیدر گارمنٹس، گلوز سمیت دیگر مصنوعات کی تیاری کی صنعتوں کو مزید فروغ دینے کے لیے مشترکہ سرمایہ کاری بھی کی جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں بجلی کی کمی کا بحران صنعتی اور معاشرتی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، تاہم ان کا ملک پاکستان میں سستی بجلی پیدا کرنے کے منصوبہ جات کے حوالے سے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی ہدایت پر ضلع پاک پتن میں ڈینگی مچھر اور اس کے لاروے کی تلفی کے لیے ہفتہ صفائی مہم عروج پر ہے۔ ڈی سی او پاک پتن سید حیدر اقبال نے کوارڈینیٹر وزیر اعلیٰ پنجاب حبیب اللہ بھٹی کے ہمراہ محلہ جھجراوالا، پیر کوٹ، اچھلی چوک، محلہ باغوالا میں جاری سیوریج کی بندش کا نوٹس لیتے ہوئے ٹی ایم اے کو فوری گندے پانی کی نکاسی اور نئی سیوریج لائن کے پائپ ڈالنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس موقع پر ڈی سی او نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈی سی او آفس میں ضلعی شکایات سیل اور دونوں ٹی ایم ایز میں بھی شکایات سیل قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں عوام صفائی کے بارے میں شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈینگی مچھر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹرانسپورٹ کے ذریعے پہنچتا ہے، جس کے تدارک کے لیے تمام بس اور ویگن اسٹینڈز پر دوسرے شہروں سے آنے والی گاڑیوں میں مسافر اتارنے کے بعد سپرے کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے کوارڈینیٹر حبیب اللہ بھٹی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کی ہدایت پر ڈینگی کے خاتمے کی خصوصی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ ادھر علی پور میں بھی ڈینگی مچھر کے خلاف گورنمنٹ ہائی اسکول سے شاہ فیصل چوک تک ریلی نکالی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر ظفر اللہ عاصم کی زیر نگرانی نکالی گئی ریلی میں شہر کے معززین کے علاوہ گورنمنٹ ہائی اسکول، سر سید اسکول، راشد منہاز اسکول اور سیکرٹری یونین کونسل اور ٹی ایم او نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے مقامی لوگوں کو ڈینگی مچھر سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر کے متعلق بریف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے گھروں، محلوں، گلیوں اور بازاروں کو صاف ستھرا رکھ کر ڈینگی مچھر کو شکست دی جا سکتی ہے۔ پنڈی بھٹیا میں بھی اسسٹنٹ کمشنر شیخ خالد سلیم کی زیر صدارت ڈینگی مچھر سے بچاؤ سے متعلق
सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भट्टिया ने डेंगू मच्छर की अफसाइश और हुकूमती इक़दामात की तफसीलात से आगाह किया। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर शौकत अली वाहला ने बताया कि डेंगू वायरस की तहसील के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुकम्मल टेस्ट किए जाते हैं, जबकि इसका मुकम्मल इलाज भी किया जा रहा है। इस मौका पर सेमिनार में शरीक शहरियों ने डेंगू वायरस के खात्मे के सिलसिले में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। ऑपरेशन राह रास्त में दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में शहीद होने वाले लांस नाइक मोहम्मद शब्बीर को नारोवाल में उनके आबाई गांव मौजा रूपोवाली में सपुर्द खाक कर दिया गया है। उनकी नमाज जनाजा में फौजी ऑफिसर्स और जवानों के अलावा लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लांस नाइक मोहम्मद शब्बीर ने 10 साल कबल पाक फौज को ज्वाइन किया था और गुज़िश्ता रोज़ वो मुल्क के दिफा के लिए दहशतगर्दों से लड़ाई के दौरान शहीद हो गए। शहीद के भाई उबैदुल्लाह ने मीडिया को बताया कि अल्लाह ताला ने उनके भाई को आला रुतबे से नवाजा है, जिससे न सिर्फ मुल्क बल्कि उनके ख़ानदान और गांव का सर भी फ़ख्र से बुलंद हो गया है। और अगर मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो वो बाकी चारों भाई भी किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। उधर ऑपरेशन राह निजात में शहीद होने वाले पाक फौज के हवालदार जफर इकबाल को भी सियालकोट में फौजी आज़ाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया है। सियालकोट के गांव पलोड़ा कलां में हवालदार जफर इकबाल का जस्ते खाकी फौजी आज़ाज़ के साथ लाया गया, जिसे स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर सलीम और दीगर अफसरान ने सलामी दी। शहीद होने वाले पाक फौज के हवालदार जफर इकबाल की कब्र पर गुलदस्ते रखे गए। शहीद की नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और इलाका भर के हज़ारों अफराद ने शिरकत की। टाइप्टा पंजाब के चेयरमैन आरिफ सईद ने कहा है कि हुकूमत गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ज़ेरे तालीम तलबा तालिबात को हुनरमंद बनाने के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है। मरी में पंजाब भर के गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल साहिबान के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पंजाब भर के तमाम टाइप्टा इदारों में जो भी मसाइल दरपेश हैं उन्हें हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे, ताकि आने वाली नस्लें फ़नी तालीम से बेहतर अंदाज में आरास्ता होकर मुल्क की तरक्की में मुआविन किरदार अदा कर सकें। इस मौका पर इजलास में शरीक पंजाब भर के प्रिंसिपल समेत जनरल मैनेजर ऑपरेशन हामिद गनी और जोनल मैनेजर मोहम्मद उस्मान भी मौजूद थे। कलोरकोट में पुलिस ने 5 बहनों के इकलौते भाई अदील के कत्ल में मुलविस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कलोरकोट के झरोली मोहल्ला के 5 बहनों के इकलौते भाई और 10वीं जमात के तालिब इल्म राव मोहम्मद अदील को उसके 4 दोस्तों शाकिर, राशिद, वकार और नदीम ने घर बुलाकर उसके गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया। मुल्जिम अपने जुर्म को छुपाने के लिए मकतूल अदील की लाश को दरिया सिंध में फेंक कर फरार हो गए। ताहम कलोरकोट पुलिस ने दरिया से मकतूल अदील की लाश बरामद होने के बाद उसके दोस्तों को हिरासत में ले लिया है। गाजी खान में पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद ने 20 साला लड़की को इज्तमाई बदसलूकी का निशाना बना दिया। पुलिस ने पेटी बंद भाई को बचाने के लिए मुतासरा लड़की का बयान रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया। नवाही इलाके की रिहायशी साइमा बीबी ने बताया है कि पुलिस कांस्टेबल अब्दुल सत्तार, सज्जाद, मोहम्मद असलम, अब्दुल रहमान, अल्लाह बख्श समेत 6 अफराद ने उसे गन पॉइंट पर इज्तमाई बदसलूकी का निशाना बनाया। इतला मिलते ही इलाका मकीनों और पुलिस ने मुल्जिमों का घेराव कर लिया, जिस पर मुल्जिमान हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दूसरी जानिब पुलिस ने अपने पेटी भाई को बचाने के लिए मुतासरा लड़की का बयान रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया है। मुतासरा लड़की की दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज ने रिपोर्ट तलब करते हुए SHO को 21 सितंबर को तलब कर लिया है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुतुबपुर में संगदिल ससुरालियों ने दामाद को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। मकतूल बीवी को मनाने के लिए ससुराल आया था। बताया गया है कि मकतूल शरीफ रहमानी को उसके हमजुल्फ हाफिज अला देता और उसके भाइयों ने अपने घर टिब्बा सुल्तानपुर की नवाही बस्ती बुलाया। जब शरीफ वहां पहुंचा तो ससुरालियों ने तलक कलामी पर मोहम्मद शरीफ पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इस दौरान मकतूल शदीद जख्मी हालत में उनके घर के बाहर तड़पता रहा, मगर किसी ने उसे अस्पताल ना पहुंचाया।
बाद उसके रिश्तेदारों ने उसे नश्तर अस्पताल पहुंचाया, जहां 100% जल जाने की वजह से 5 रोज मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद चल बसा। भावलपुर में हिरनों की गैर कानूनी शिकार और चोरी की वारदातों में मुलविस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 4 चंकारा हिरन समेत 59 तीतर बरामद कर लिए गए हैं। डीसीओ भावलपुर डॉक्टर नईम रऊफ ने डीपीओ भावलपुर सुहेल हबीब ताजिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि चोलिस्तान के इलाकों में हिरनों की अफसाइशी नस्ल के लिए 600 एकड़ पर खुसूसी पार्क बनाए गए हैं, जबकि हिरनों के गैर कानूनी शिकार और चोरी के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर सदर तनवीर जंडेर की सरबराही में एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। इस टीम ने गैर कानूनी हिरनों और तीतरों के शिकार और चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया है, जिसके दौरान टीम ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिसमें मोहम्मद ताहिर राजा, पेट्रोल पंप के मालिक राजा नादिर, आदिल कुतबी, नूर मोहम्मद और दीगर शामिल हैं। कोयटा में सेशन जज के कत्ल के खिलाफ वकला की जानिब से बलोचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वकला का अदालती बायकॉट जारी है, जिसके बाद साइलिन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेशन जज कोयटा जुल्फिकार नकवी के कत्ल के खिलाफ बलोचिस्तान बार एसोसिएशन ने एहतजाज और अदालती कार्रवाई का बायकॉट का ऐलान किया था, जिसके नतीजे में वकला आज अदालतों में पेश नहीं हुए और अदालतों में काम ठप रहा। अदालतों में काम बंद होने से मुकदमात की समाअत नहीं हो सकी, जिससे साइलिन को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब जुड़वा शहरों में भी हाई कोर्ट में वकला पेश नहीं हुए, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकला ने अदालतों का मुकम्मल बायकॉट किया। इस मौका पर वकला बरादरी ने कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने में नाकाम हो चुके हैं। अब कोई भी शहरी महफूज नहीं रहा। वकला ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुलजिमों को फिलफौर गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। उधर पंजाब बार काउंसिल की अपील पर लाहौर की तमाम मातहत अदालतों में भी वकला ने मुकम्मल बायकॉट किया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में मामूल के मुताबिक केसेस की समाअत हुई। पंजाब बार काउंसिल ने सूबा भर के वकला से अपील की थी कि कोयटा में सेशन जज के कत्ल के खिलाफ अदालती बायकॉट को यकीनी बनाया जाए। वकला रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत वकला और जजेस को तहफ्फुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। सेशन जज के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके मंजर-ए-आम पर लाया जाए। पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि पुलिस अपना किबला दुरुस्त करे, दौरान तफ्तीश इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए कोताही या गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने इन ख्यालात का इजहार टेंट ऑफिस में समनाबाद लाहौर और हुजरा शाह मुकीम उकाड़ा से ताल्लुक रखने वाले 2 मजलूम खानदानों से मुलाकात के दौरान किया। इजलास में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब और दीगर सीनियर हुकाम ने शिरकत की। इस मौका पर वज़ीर आला ने समनाबाद कत्ल केस की पैरवी में कोताही बरतने पर प्रोसिक्यूटर को मुअत्तल करने का हुक्म दिया, जबकि हुजरा शाह मुकीम में डकैती के दौरान कत्ल होने वाली 20 साला लड़की के तमाम मुल्जिमान को 1 हफ्ते में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि जुराइम की बेखुनी, डाकुओं, बदमाशों, चोरों और जुराइम पेशा अफराद को कानून के कटहरे में लाना पुलिस की जिम्मेदारी है। पाकपतन में 2 डॉक्टरों के इस्तीफे के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इंतजामिया ने मरीजों को अस्पताल के अमले के रहमो करम पर छोड़ दिया है। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी में काम करने वाले 2 डॉक्टर्स शाहिद खान और डॉक्टर अब्दुल वहीद ने 3 रोज कबल इस्तीफा दे दिया था। सराय के मुताबिक दोनों डॉक्टर्स ने महकमा हेल्थ के एडमिनिस्ट्रेशन और MSDHQ अस्पताल के मनपसंद मुलाजिमीन की बेजा मुदाखलत के बायस काम करने से इनकार करते हुए इस्तीफा दिया, जिसकी वजह से इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स न होने की वजह से हादसात और दीगर इमराज में मुब्तला अफराद को अस्पताल का अमला ही चेक कर रहा है, जबकि मामूली नौयत के इमराज में मुब्तला मरीजों को दूसरे शहरों के अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। मरीजों और उनके वरसा ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद में महकमा इनहार की रिहायशी कॉलोनी में जगह जगह गंदगी के ढेरों और गंदे पानी से डेंगू वायरस फैलने का खदशा बढ़ गया है। इलाका मुकीनों ने वक्त न्यूज को बताया कि उन्हें महकमा की तरफ से दिए गए
क्वार्टर अरसा दराज से अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, जबकि जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज के नाकिस इंतजाम के बायस डेंगू वायरस फैलने का खदशा बढ़ गया है। दूसरी जानिब कॉलोनी का गेट और सिक्योरिटी गार्ड्स न होने की वजह से चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो चुका है। कॉलोनी के वाहिद प्ले ग्राउंड को खत्म करके रेस्ट हाउस बना दिया गया है। मुकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महकमा इन्हार की कॉलोनी को दरपेश मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। इस्लामाबाद में डेंगू का पहला केस सामने आ गया है। वायरस का शिकार होने वाली खातून को पिम्स अस्पताल दाखिल करा दिया गया है। चुनावाले की रिहायशी रेहाना बीबी को तबीयत खराब होने के बायस पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद में दाखिल कराया गया है, जहां इसमें डेंगू वायरस की तशखीस हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक खातून हामिला है, ताहम इसकी हालत खतरे से बाहर है। डेंगू वायरस के हवाले से डॉक्टर्स का कहना है कि इस खातून का ताल्लुक पंजाब से है, लिहाजा डेंगू वायरस के फैलने का इम्कान हो सकता है। गाजी खान पुलिस ने असलहा स्मगलर गिरफ्तार करके उसके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया है। थाना सदर की हुदूद डिफेंस कॉलोनी में खुफिया इत्तला पर पुलिस ने छापा मारकर जुबैर नामी शख्स गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस शख्स के ताल्लुक दरादम खेल कोहाट से है और अरसा दराज से असलहा की स्मगलिंग में मुलव्विस है। गाजी खान में डिफेंस कॉलोनी से जुबैर को उसकी कार समेत गिरफ्तार किया गया, जिसके खुफिया खानों से 15 पिस्तौल, 1 अदद क्लाशनकोफ और 5700 गोलियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने जुबैर से तफ्तीश शुरू कर दी है। सदर आजाद कश्मीर ने चीफ स्काउट आजाद जम्मू कश्मीर के ओहदे का हलफ उठा लिया है। सरदार याकूब का कहना है कि नौजवान किसी भी कौम के लिए इनकलाब का पेश खैमा होते हैं। उनमें जज्बा हुब्बुल वतनी, कौमियत चहती सिर्फ निसाबी कुतुब से मुमकिन नहीं, बल्कि इसमें तरबियती उमूर कार फरमा होते हैं। कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुनाकिदा एक तकरीब में फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ कमिश्नर पाकिस्तान बॉय स्काउट्स आगा रफीक अहमद खान ने सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान से चीफ स्काउट्स आज़ाद कश्मीर के ओहदे का हलफ लिया है। तकरीब से खिताब करते हुए सरदार याकूब का कहना था कि रियासत की कानून साज असेंबली ने स्काउटिंग के फरोग के लिए बाकायदा एक एक्ट पास किया है और आज़ाद कश्मीर में स्काउट हेड क्वार्टर की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी के लिए 2 करोड़ रुपए की खती रकम जारी की गई है। उनका कहना था कि 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले में भी इन स्काउट्स ने अहम किरदार अदा किया है। हमारी कौमी तालीमी पॉलिसी में स्काउटिंग को तालीमी तहरीक के तौर पर शामिल किया गया है। और अब कुछ खबरें सिंध धरती से। मीरपुर खास के सिविल अस्पताल में दवाओं की शदीद किल्लत के पेश नज़र मीरपुर खास प्रेस क्लब की जानिब से अस्पताल को 1.5 लाख रुपए मालियत की अद्विया फराहम की गई हैं। गुज़िश्ता कई माह से सिविल अस्पताल में दवाओं की शदीद किल्लत पैदा हो गई थी, जिसके बायस अस्पताल में दाखिल मरीज दवाएं अस्पताल से बाहर से खरीदने पर मजबूर हो गए थे। इस संगीन सूरत हाल के पेश नज़र मीरपुर खास प्रेस क्लब की जानिब से सदर राशिद सलीम की सरबराही में एक वफ़द ने सिविल अस्पताल के लिए 1.5 लाख रुपए मालियत की अद्विया कमिश्नर मीरपुर खास गुलाम हुसैन मेमन, डिप्टी कमिश्नर नदीम रहमान मेमन की मौजूदगी में सिविल सर्जन डॉक्टर असगर आराई के हवाले की। इस मौका पर कमिश्नर मीरपुर खास का कहना था कि वो मीरपुर खास प्रेस क्लब के इस जज्बे की कदर करते हैं। नवाबशाह में मानसून की पहली मुसलधार बारिश से कई कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए, चुके तेज हवाओं के बायस मुतादिद मुकामात पर दरख्त और साइन बोर्ड्स टूट गए और बिजली और मवासलात का निज़ाम दरम बरम हो गया है। मूसलाधार बारिश से रेलवे ट्रैफिक समेत ट्रांसपोर्ट भी बुरी तरह मुतासर हो गई है, जबकि कपास की तैयार फसल समेत दीगर फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब बारिश के बायस नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिसके बायस लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ताहम बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है और मौसम खुशगवार हो गया है। कराची से खैबर तक का सफर जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक।
شہر عقائد کے حوالے سے بات کریں گے۔ کراچی میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے رینجرز فیلڈ سیکرٹ ونگ کے حوالدار محمد یونس چوگی کو خیرپور کی تحصیل میرواہ میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ شہید حوالدار محمد یونس چوگی کی نماز جنازہ میں کرنل محمد اسلم، سینئر سپرنٹینڈنٹ رینجرز ملک محمد مختار، ونگ کمانڈر شہباز رینجرز میجر محمد شہباز دورانی سمیت دیگر افسران اور اہلکاروں کے علاوہ لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شہید محمد یونس چوگی نے کہ بڑے بیٹے شاہد جوگی کا کہنا تھا کہ شہادت خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے والد ملک دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حیدرآباد میں ہندو لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کا مذہب تبدیل کرانے کے خلاف قوم پرست تنظیموں کی جانب سے ہندوؤں کی حمایت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سندھ محاذ کے چیئرمین ریاض چانڈیو، وقار حسین لطیفی، ایاز ثنائی، امتیاز سومرو اور دیگر نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ جمہوری حکومت کے دور میں 1000 سے زائد ہندو خاندان سندھ سے بھارت نقل مکانی کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں ہندو لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کا مذہب تبدیل کرایا جا رہا ہے، جبکہ ہندو تاجروں اور سرمایہ داروں کو اغوا کر کے بھتے اور تاوان وصول کیے جا رہے ہیں، جس کے باعث سندھ میں ہندو خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میگھواڑ، کولھی اور ہندوؤں کی دیگر برادری کے لوگ سندھ کے وارث ہیں، لیکن انہیں نہ تو انصاف فراہم کیا جاتا ہے اور نہ ہی انہیں برابری کے حقوق دیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر شاہ لطیف بٹائی فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری وقار حسین لطیفی نے بھی خطاب کیا۔ کھوٹکی میں اہم رہنماؤں کی پیپلز پارٹی میں ممکنہ شمولیت کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنان کے احتجاج کرتے ہوئے ریلی نکالی۔ کھوٹکی ضلع کے اہم سیاسی مہر گروپ کی پاکستان پیپلز پارٹی میں ممکنہ شمولیت کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکن ریلی کی صورت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ ریلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنان نے شرکت کی۔ ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب کے سامنے اختتام پذیر ہوئی، جہاں پیپلز پارٹی کے ضلعی رہنما سکندر لاکھو، قادر خان دھاریجو، ریاض احمد بھٹو اور دیگر نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے، تاہم اب عوام میں وڈیروں، جاگیرداروں اور لٹیروں کے ظلم و ستم برداشت کرنے کی سخت نہیں رہی۔ حیدرآباد میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے جبری گمشدگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق اسپیشل ٹاسک فورس حیدرآباد کے رہنما جام ساکی کی قیادت میں مظاہرین ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر احتجاج کر رہے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، سب کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ جبری گمشدگی بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جبری گمشدگی کا مسئلہ ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ دادو میں بس ٹرمینل شہر سے باہر منتقل کرنے پر شہری اور ٹرانسپورٹرز نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہروں میں شریک ٹرانسپورٹرز نے RTA آفس کا گھیراؤ کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر ٹرانسپورٹ یونین کے صدر میر محمد اور محمد علی چانڈیو، غلام حسین لاشاری، علی خان سومرو اور دیگر نے بتایا کہ دادو کے منتخب نمائندے بس ٹرمینل باہر منتقل کرنے پر خاموش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئے بس ٹرمینل میں کسی قسم کی سہولت فراہم نہیں کی گئی۔ بس ٹرمینل پانی، بجلی اور دیگر سہولیات سے محروم ہے، جبکہ شہر سے دور ہونے کے باعث مسافر وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ اس بس ٹرمینل کو ختم کیا جائے یا پھر انتظامیہ یہاں سہولیات فراہم کرے تاکہ مسافروں اور ٹرانسپورٹرز میں پائی جانے والی بے چینی ختم کی جا سکے۔ بصورت دیگر وہ پرانے بس اسٹاپ کو ہی سفری سہولیات کے لیے استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جکوآباد میں غیرت کے نام پر ملزم نے 2 خواتین کو گولیاں مار کر قتل کر دیا اور خود اسلحہ سمیت تھانہ پہنچ کر گرفتاری پیش کر دی۔ ADC کالونی کے قریب ملزم عباس چکرانی غیرت کے نام پر اپنی 50 سالہ بھابھی اور اپنی 22 سالہ بھتیجی کو فائرنگ کر کے قتل کر کے فرار ہو گیا۔ ماں بیٹی کے قتل کے بعد اہل محلہ اور رشتہ دار بڑی تعداد میں جمع ہو گئے اور پولیس کی مدد سے دونوں خواتین کی لاشیں اٹھا کر سول اسپتال منتقل کی، جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ قتل کے واقعے کے 1 گھنٹے بعد ملزم عباس چکرانی نے تھانہ سول لائنز پہنچ کر آلۂ قتل سمیت گرفتاری پیش کر دی۔
घारो और इसके गिरदोनवा में हल्की बारिश के बाद शदीद हब्स और गर्मी ने इंसानी जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है और शहर की गलियां और बाजार वीरान हो गए हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए नहरों का रुख कर रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली। घारो और इसके गिरदोनवा में हल्की बारिश के बाद शदीद हब्स व गर्मी ने इंसानी जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है और शहर की गलियां व बाजार वीरान हो गए हैं और लोग गर्मी से बचने के लिए नहरों का रुख कर रहे हैं। तो वहीं ठंडे मशरूबात में भी इजाफा देखने में आया है, जहां मशरूबात फरोख्त करने वाले मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। जहां गर्मी के बाद शहरी सख्त परेशान हैं, तो वहीं बिजली के बार बार ब्रेक डाउन से कारोबारी जिंदगी भी शदीद मुतासिर हो रही है और बिजली के सताए दुकानदार इसका शिकवा करते हुए कहते हैं, पता नहीं क्या हो गया, गारों को नजर लग गया, केसी वालों को, या गारों पे नजर लग गया, समझ में नहीं आ रहा है। कारोबार तो है ही नहीं बिल्कुल, ये हमारे प्रेजे भरे पड़े, सब गर्म माल है। मीरपुर खास और गर्मी तेज हवाओं के साथ साथ होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस निजाम जिंदगी मफलूज हो गया है। मूसलाधार बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ है, उसके साथ ही इंतजामिया की जानिब से किए गए तमाम दावों का पोल भी खुल गया है। बारिश के बायस शहर के नशेबी इलाकों में पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल हो गया और लोग गाड़ियों में महसूर होकर रह गए हैं, जबकि कई शहरी अपनी गाड़ियां सड़कों पर छोड़कर पैदल ही घर चले गए। जबकि बारिश के बायस शहर के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं, जिसके बायस शहर अंधेरे में डूब गया है। मजीद खबरों की जाने बढ़ेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा मसूद शरीफ खटक ने पार्टी का सदारती इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया है। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, इसलिए मुल्क में तब्दीली की जरूरत है। उन्होंने कहा कि साबिक अदवार में सूबा खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद सियासी जमात है जिसमें ओहदों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं और कारकुनान को पार्टी रहनुमाओं के इंतखाबात का हक दिया गया है। उनका कहना था कि मुल्क में तब्दीली की हवा चल पड़ी है और अवाम तब्दीली चाहते हैं, क्योंकि उन्हें हर दौर में नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के इंतखाबात 15 सितंबर से 20 सितंबर तक होंगे, जिसके लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी किया। चित्राल के इलाके दरोश में करोड़ों रुपए की लागत से वाटर सप्लाई स्कीम को सैलाब से खतरा लाहक है। चित्राल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी दरोश में 16 करोड़ रुपए की लागत से पीने के साफ पानी की पाइपलाइन पर मुकामी लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। वाटर सप्लाई स्कीम पर मुकामी लोगों को शिकायत है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के पाइप को ज़मीन की सतह पर खुला छोड़ दिया गया है। अगर किसी भी वक्त सैलाब आया तो ये पाइपलाइन सैलाब की नज़र हो जाएगी, जिससे न सिर्फ करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है, बल्कि हजारों लोग पीने के साफ पानी से महरूम हो जाएंगे। इस सिलसिला में मुतालिका ठेकेदार का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को जमीन में दरियाफ्त करने नीचे की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को कनेक्शन लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ताहम मुकामी लोगों का कहना है कि अगर इस पाइपलाइन को बिछाने के लिए फासली दीवार नहीं बनाई गई तो इससे किसी भी वक्त सैलाब से नुकसान पहुंच सकता है। पेशावर में हाजी कैंप अड्डा के ट्रांसपोर्टर्स ने शेड्यूल से जायद फीस की वसूली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर महकमा ट्रांसपोर्ट और अड्डा इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि हाजी कैंप अड्डा में फ्लाइंग कोच ड्राइवर से अदालती अहकामात के बावजूद शेड्यूल के बरक्स फीस वसूल की जा रही है। उन्होंने कहा कि अड्डा ठेकेदार 66 रुपए की बजाय 220 रुपए वसूल कर रहे हैं, जिससे इनमें शदीद बेचैनी पाई जाती है, लेकिन इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा ने मुल्क में जारी बदअमनी और दीगर मसाइल के हवाले से नौशहरा में जलसा इस्लामी इनकलाब मुनाकिद करने का ऐलान कर दिया है। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के नायब अमीर मेराजुद्दीन ने कहा कि मुल्क में आए रोज बहरान बढ़ते जा रहे हैं और बदअमनी में इजाफा हो रहा है, जबकि बाजोड़ एजेंसी में सरहद पार से हमलों की वजह से खौफ की फजा कायम है। सूबाई हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और महंगाई और बेरोजगारी उरूज
अरूज पर है। उनका कहना था कि मुल्क में बिजली बहरान की वजह से कारखाने बंद होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जिला नौशहरा में हालिया सैलाब ने तबाही मचा दी है, लेकिन अवाम ताहाल इमदाद से महरूम है। इस सिलसिले में जमात इस्लामी नौशहरा ने करप्शन और बदअमनी के खिलाफ जिला भर में अवामी तहरीक चलाने का फैसला किया है। और अब आपको लिए चलते हैं सूबा बलोचिस्तान। कोयटा के जिला जियारत के मेन बाजार में क्रैकर धमाका हुआ, ताहम किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाका जिला जियारत के मेन बाजार में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के करीब एक कचरा दान में हुआ। धमाका क्रैकर से किया गया, जिसके नतीजे में करीबी मेडिकल स्टोर समेत 2 दुकानों को नुकसान पहुंचा और उनके शीशे टूट गए। धमाके के वक्त बाजार में ज्यादातर दुकानें बंद थीं। हालात में पाकिस्तान वोबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन बलोचिस्तान ने अपने मुतालबात के हक में वोबरा हाउस के दफातर की तालाबंदी करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने केस्को के आला हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर वोबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन के चेयरमैन शेर जान मुगलसई और डिवीजनल सेक्रेटरी हाजी नसीर अहमद ने केस्को की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि केस्को के मुकामी अफसरान ने लूट मार करके वोबरा जैसे मुनाफा बख्श इदारे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि केस्को इंतजामिया इदारे को चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कराची से खैबर तक का सफर यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।